हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, yesterday we have learnt about basics of a computer system and a mobile device. And in this chapter, what were the learning objectives, functioning of a computer, characteristics of a computer, and features of a mobile device. Yesterday I taught you functioning of a computer, and today I will continue with characteristics of a computer. Before start this topic, let's recapitulate the yesterday topics. Yesterday I have given you some introduction related to the computer and the computer definition, what is computer, and the 4 units of computer system. What was the 4 units? Yes, storage, processor, output, input. Okay, and the next one is hardware, software, data and information. तो yesterday क्लास में मैंने बताया था कंप्यूटर ये सारी कम्बिनेशन से बनता है, जिसमें हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा होते हैं और इंफॉर्मेशन होते हैं। कल क्लास में हमने फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में जाना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आईपीओ साइकिल के बारे में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया जो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। And functional components of a computer. Then how many I have taught? 4 functions: accept data, processes data, produces result, output, stores result. And basic structure of a computer, have you seen it carefully? I think so, you all. And the function is also input function, output function, processing function, storage function. And now let's student start today topics. Characteristics of a computer. Students, as you have seen that computers are being effectively used for a variety of tasks in nearly every field. Have you seen or not? Yes, computers जो है वो सारी तरह के टास्क कर सकता है, सारे फील्ड में इसका यूज़ होता है, हर तरह के फील्ड में। कैन यू थिंक ऑफ द क्वालिटीज़ विच मेड कंप्यूटर सो पॉपुलर? कैन यू? Okay, let us explore those reasons that are responsible for computers' popularity. Why computer is popular? तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कौन कौन से स्ट्रेंथ्स हैं। Let us see what these strengths are. First one, speed. Second, high storage capacity. Third, accuracy. Fourth, reliability. And fifth is versatility. Okay students, let's start one by one.
The first one is speed. Hence the computer is very high speed and gives the result in very short time. Here computers are much faster as compared to human beings. बताइए है या नहीं? हाँ है, कंप्यूटर ह्यूमन बींग से बहुत ही फास्ट है. कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क इन अ मिनट that may take days it perform manually. A modern computer can execute millions of instructions in 1 second. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है वो बहुत ही स्पीड वर्क करता है और ये हमें बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देता है. अगर उस रिज़ल्ट को हम मैनुअली करना चाहें तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, और कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो विदिन आवर विदिन मिनट ये कंप्लीट करता है. Now come to the second point, high storage capacity. Store whatever data we store, it is permanently stored. जो भी हम कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, कल भी मैंने बताया था कि स्टोरेज डिवाइस होते हैं, वो कहाँ होते हैं? प्रोसेसर में या एक्सटर्नल डिवाइस में भी हम लोग स्टोर करते हैं. तो कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल स्पेस. अ CD-ROM ऑफ 4.7 inch diameter can store all the 33 volumes of Encyclopedia Britannica and will still have room to store more information. Bubble memories can store 62,50,000 bits per square centimeter of space. Tourist flash memory sticks, as you all know, what is the memory sticks? What is the example of memory sticks? Pen drive can be 3 to 5 centimeters long only and can still store up to 256 gigabyte. It means GB, 256 GB of data. तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो भी डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं वो हमें एक्यूरेटली डेटा को प्रोसेस करके प्रोवाइड करता है. तो नेक्स्ट थर्ड वन सी रिलेटेड है. थर्ड वन इज़ एक्यूरेसी. कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस एक्यूरेटली प्रोवाइड द हार्डवेयर डज नॉट malfunction. तो कंप्यूटर द डेटा वी रिसीव इज़ वेरी मच एक्यूरेट. जो भी डेटा हमें कंप्यूटर से मिलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है. तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स देखे. द फर्स्ट इज स्पीड, सेकंड इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड थर्ड इज एक्यूरेसी. लेट्स कम्स इन रिलायबिलिटी एंड द versatility. Reliability. Computers are immune to tiredness and boredom or fatigue. Thus, they are more reliable than human beings. Means reliability means it does not get tired of doing same things again and again as we get tired. कंप्यूटर पे हम कोई भी काम फिर से बार बार करते हैं, या कंप्यूटर कोई काम बार बार को करता है, तो कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है, लेकिन हम टायर्ड हो जाते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी. Computers can perform repetitive jobs efficiently. They can solve labor problems or do hazardous jobs in hostile environment. They even can work in the areas where human brain can error. For instance,
observing motion of very fast moving articles. Also they can work with different types of data and information like graphics, audio, visual, characters, etc. Means multitasking. सारा वर्क करता है कंप्यूटर. और ये means I can say that versatility means instead of repetitive job it does not get bored. बार बार एक ही काम करने में कंप्यूटर कभी भी बोर्ड नहीं होता है. एंड डज द सेम वर्क वेरी मच इफिशिएंटली. और सेम वर्क, हर काम को बहुत ही इफिशिएंट ये करता है. Then students, hence these are the few characteristics of computer, means strengths of computer. Now we will move on. Here 3 weaknesses of computer. Weaknesses of a computer. The first one is lack of decision making power. Computers cannot decide on their own. Is computer decide? No, they do not possess this power, which is a great asset of human beings. तो हम लोग स्ट्रेंथ में देखें कि वो स्ट्रेंथ में क्या था, वो स्पीड में ह्यूमन बींग से अच्छा था. स्टोरेज कैपेसिटी भी उसकी ह्यूमन बींग से अच्छी थी. एक्यूरेसी भी अच्छी थी. पर वीकनेसेस कहाँ पर आ जाते हैं? डिसीजन मेकिंग पावर. क्या कंप्यूटर कोई डिसीजन ले सकता है? नो, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी पावर टू मेक डिसीजन इन इट. एंड द सेकेंड वन इज IQ 0. Computer are dumb machine with 0 IQ. They need to be told each and every steps, however minute it may be. As it means computer does not have any IQ as we have. And the third is no heuristics. No heuristics. Heuristics means learning from past experiences. If a computer commits an error once and similar situation events occur again, computer will commit the same error again. It cannot learn from past experience, but human being learn from past experience very well. As here, no heuristics means it does not learn from its past experiences. तो जिस तरह से हम पहले कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गलती हमसे होती है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको सुधार लेते हैं, सही कर लेते हैं. बट कंप्यूटर इसको नहीं करता है. अगर हम कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं, अगर वो वर्क में वो एक प्रोग्राम प्ले कर रहे हैं, वो एरर दिखा दिए तो नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तो वो एरर ही शो करेगा. So these are the few weaknesses of a computer. Okay students, तो हमने अभी कुछ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा और उसके वीकनेसेस के बारे में पढ़ा. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? बेसिक्स फीचर्स ऑफ अ मोबाइल डिवाइस. मॉडर्न डे स्मार्टफोन आर ऑल्सो टीनी कंप्यूटर्स. आप लोग सभी को पता है. दैट परफॉर्म सुपरबली. In fact, a smartphone sometimes offer much more diversity in functions than a computer system. A smartphone is a handheld device which combines in utility, a communication device, multimedia device, gaming device, a modem, etc., while providing interactivity through features like home button, touch sensitive screen, gesture friendly software, etc. and many more features. स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं
कि मोबाइल फ़ोन भी, स्मार्टफ़ोन भी हमारा एक छोटा कंप्यूटर ही है। और कभी कभी तो ऐसा भी है कि मोबाइल फ़ोन हमें ज़्यादा फैसिलिटी देता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है जो फैसिलिटी हमारे कंप्यूटर से हमें नहीं मिलती है। जैसे सबसे पहले तो ये बहुत ही हैंड हेल्ड है डिवाइस है, इसको आराम से हाथ में लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। और इसके थ्रू हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक मल्टीमीडिया डिवाइस भी है, गेमिंग डिवाइस भी है, जो हम टच के साथ यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर। दैट्स व्हाई दिस इज़ द फीचर होम बटन, touch sensitive screen, gesture friendly software, etc. and many more features. Now take an overview of a smartphone. A smartphone functionality overview. स्मार्टफोन की फंक्शनलिटी को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर क्या है, स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। मीन्स आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं वो क्या हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। कीबोर्ड फीचर्स आल्सो देयर, क्वेलिटी जिससे हम टाइप करते हैं, सबके मोबाइल में कीबोर्ड फीचर्स भी अवेलेबल हैं। मैसेजिंग फीचर्स इज आल्सो देयर, व्हेन वी वांट वी कैन मैसेज एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो इन द मोबाइल सेम एज इन द कंप्यूटर, एंड कैमरा फीचर्स इज आल्सो better than computer, and audio and video capability, internet access, these are the smartphone functionality overview. अब हम देखते हैं बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन हम इसको कुछ डीपली जानते हैं। बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल ऑफर्स all these in a small handheld device packed with all these features. तो कौन कौन से फीचर हैं यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है। तो मोबाइल की लेआउट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सिम कार्ड ट्रे, ठीक है, उसमें हम सिम कार्ड लगाते हैं। तो आप लोग इसको चेकआउट कर लें अच्छी तरीके से। एलईडी इंडिकेटर, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, टच स्क्रीन, रिसेंट की, हेडसेट जैक, मल्टीपर्पज़ जैक, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, बैक की, होम की, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सेंसर, and now display face recognition sensor also there, power key, front camera, microphone, speaker. I think this layout you know very well than me. ये आपको, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पता है मोबाइल्स के सारे जितने भी लेआउट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कुछ कॉमन फंक्शनलिटी अवेलेबल इन स्मार्ट मोबाइल डिवाइस के बारे में जानेंगे। मॉडर्न इज स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट सो मच इन देयर टीनी बिल्ड एंड ऑफर मेनी फंक्शंस लाइक मोबाइल बैटरी। Every mobile device has a small mobile battery. This is chargeable. It allows you to use the device anywhere. तो सबसे पहले हम इसके कॉमन फंक्शन में आ गए। कॉमन फंक्शन सबसे पहले हम किसके बारे में जान रहे हैं, बैटरी के बारे में। सारे मोबाइल डिवाइस में एक स्मॉल बैटरी होती है और उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो उसको चार्ज भी करके अपने पास रख सकते हैं। इट मीन्स हम ये डिवाइस कभी भी कहीं भी लेकर जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। द सेकेंड कॉमन फंक्शन इज सेलुलर टेलीफोनी। दिस फीचर्स इनेबल्स मोबाइल डिवाइस टू मेक कॉल्स यूजिंग सेलुलर टेक्नोलॉजी। फॉर दिस देयर एवरी स्मार्टफोन हैज सिम स्लॉट वेयर सिम कार्ड इज इन सर्टेड विच इज़ नेसेसरी फॉर सेलुलर टेलीफोनी। स्टूडेंट, क्या सिम कार्ड बिना लगाए हम किसी से बात कर सकते हैं मोबाइल में बिना सिम कार्ड लगाए? नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को अगर ऐसे सेलुलर टेलीफोनी यूज़ करना है तो उसमें सिम
लगाना होगा। जब हम सिम लगाएंगे तभी हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं। नाउ द थर्ड कॉमन फंक्शन इज interactivity with ease. Modern age smartphone provide interactivity to user with features like touch screen. The mobile screen comes equipped with touch sensor. Thus user can touch various parts of a mobile screen to give command. सबके पास स्मार्टफोन है, आप लोग सभी के पास अभी स्मार्टफोन है, तो आप लोग अभी स्मार्टफोन को कैसे यूज़ कर रहे हो? टच करके। क्यों, कैसे? बिकॉज इट हैज़ अ टच सेंसर। और कहीं भी कुछ भी हमें ओपन करना होता है तो हमें क्या करना होता है? बस वहाँ पर उसको टच करना होता है। कोई भी ऐप्स ओपन करना है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सअप। अगर व्हाट्सअप ओपन करना है तो आप क्या करते हैं? जस्ट सिंपल बस उसको टच करते हैं। टच करने के बाद क्या होता है? हमारा व्हाट्सअप ओपन हो जाता है। और ये टच करने से कैसे हो जाता है? क्योंकि मोबाइल के पास टच सेंसर है। जेस्चर स्मार्टफोन ऑफ टुडे can sense gestures like waving of hands etc. can do whatever function is linked to the gesture. Common gestures are tap, double tap, triple tap, pinch, swipe etc. Student, as you all know that when we click a picture, many smartphone have the facility to show the palm. अगर हम अपने पाम को, अपने हैंड्स को दिखाते हैं तो वो पिक्चर क्लिक कर लेता है सेल्फी का। इस तरह के कितने फंक्शंस आप लोग के मोबाइल में अवेलेबल हैं। एंड द फोर्थ कॉमन फंक्शन इज कनेक्टिविटी ऑप्शन. मॉडर्न डे मोबाइल डिवाइस ऑफर मेनी कनेक्टिविटी ऑप्शन सच एज ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी। तो ब्लूटूथ, आई थिंक ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी that connects a mobile device with other mobile devices within the range of 10 meters. How many meters? 10 meters. Also having Bluetooth. तो Bluetooth तो पता है सब लोग यूज़ कर ही रहे होंगे. ब्लूटूथ का यूज़ क्या है? ब्लूटूथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो एक मोबाइल डिवाइस को दूसरे मोबाइल डिवाइस में से कनेक्ट करता है, पर रेंज उसका कितना होना चाहिए? 10 मीटर्स. अगर वो 10 मीटर्स से बाहर की रेंज में रहेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा. और 10 मीटर्स के रेंज में उनका भी ब्लूटूथ, जो सामने वाले डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उनका भी ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए उस डिवाइस में. वंस कनेक्टेड द मोबाइल डिवाइस कैन एक्सचेंज मैसेजेस, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो. जब भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो किस लिए कनेक्ट करते हैं? डेफिनेटली शेयर करने के लिए. कुछ इमेजेस शेयर करना है, ऑडियो वीडियो शेयर करना है, कुछ भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करना है तो हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ वाईफाई. दिस इज़ ऑल्सो अ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी. वाईफाई बहुत यूज हो रहा है ना. दिस इज़ ऑल्सो अ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी डैट कनेक्ट्स अ मोबाइल डिवाइस टू अ लोकल एरिया नेटवर्क. लैन, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है ना लैन के बारे में. लोकल एरिया नेटवर्क, it means within a room, within a building. Mostly a local area network is connected with internet and thus through Wi-Fi. The mobile device also connects to the internet via local area network and uses all internet services like searching, email, etc. तो वाईफाई के थ्रू हम क्या करते हैं? वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, वो सबको पता है. और ज़्यादातर ये लोकल एरिया नेटवर्क में ही इसका कनेक्टिविटी मिलता है जब हम उसके नियर बाई हों. तो ये जब कनेक्ट होता है तो क्या होता है? इंटरनेट सर्फिंग होने लगता है. तो नेट सर्फिंग होता है तो क्या इंटरनेट अगर चला रहे हैं या वाईफाई चला रहे हैं तो कोई डिफरेंसेस है उसमें? नहीं.
इंटरनेट पे भी हम लोग सर्च करते हैं, मेल्स देखते हैं एक्सेट्रा बहुत सारे। सेम वाईफाई के थ्रू भी हमें इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है, जिसके थ्रू हम सेम वर्क कर सकते हैं जो हम डायरेक्ट इंटरनेट से भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी। मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी, दिस टेक्नोलॉजी यूजेस सेलुलर नेटवर्क to connect to the internet. This is available only if you have a SIM card active and that supports mobile data network. यहाँ पर वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी में एक डिफरेंस आता है। अगर हमारे मोबाइल में सिम नहीं भी लगा है तो हम वाईफाई का यूज़ करके नेट सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। बट अगर हमारे मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है तो हम मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल में सिम कार्ड होना चाहिए, तो हमारे सिम कार्ड से हम डायरेक्ट अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द फिफ्थ वन इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जानते हैं आप लोग? जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सब लोग जानते हैं। जीपीएस इज़ अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम। इट यूजेस रेडियो वेव्स बिटवीन सैटेलाइट्स एंड अ रिसीवर इनसाइड योर फोन टू प्रोवाइड लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। एप्स लाइक, एग्जाम्पल दीजिए, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स यूज़ द जीपीएस टेक्नोलॉजी। आप लोग कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन या किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो उस नई जगह के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो सिंपल सा आप तो लोग पूछते भी नहीं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, मैप ओपन करते हैं, गूगल मैप ओपन करने पे वो लोकेशन सर्च करते हैं। तो ये लोकेशन सर्च कैसे करता है? क्योंकि गूगल मैप जो है वो जीपीएस का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रेडियो वेव्स का यूज़ करते हुए सैटेलाइट एंड द रिसीवर इनसाइड योर फोन टू प्रोवाइड लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। तो इसका यूज़ करते हुए हमें लोकेशन बताता है, टाइम इंफॉर्मेशन भी देता है कि इस लोकेशन पर पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे आप लोग को भी पता है कि आप लोग की स्कूल बस में भी जीपीएस लगा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी एप्स। एवरी मोबाइल डिवाइस comes equipped with some pre-installed productivity apps like clock that keeps record of time and lets you set alarm, stopwatch, timer, etc. Calendar that gives information of dates, month and years. Gallery to hold your photos and videos and many more. प्रोडक्टिविटी ऐप्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इसके पहले वाले चैप्टर में। तो उस तरह के ऐप्स जिसका हम डेली यूज़ करते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी समय जिसका यूज़ करते हैं। क्या आप स्मार्टफोन जब आप खरीदते हैं तो कभी आपको उसमें हमें क्लॉक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, कैलेंडर ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, गैलरी इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं। ये सारे किस तरह के हैं? ये सारे प्री इंस्टॉल प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्टिविटी ऐप्स प्री इंस्टॉल नहीं होते हैं, उन्हें हम इंस्टॉल भी करते हैं, पर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो प्री इंस्टॉल प्रोडक्टिविटी ऐप के हैं। क्लॉक, कैलेंडर, गैलरी। क्लॉक का यूज़ किस लिए करते हैं सबको पता है, टाइम के लिए, अलार्म सेट करने के, स्टॉप वॉच, टाइमर के लिए। कैलेंडर का यूज़ इंफॉर्मेशन ऑफ डेट्स, मंथ्स, ईयर्स। और गैलरी का यूज़ फ़ोटो, वीडियोज़, ये सब रखने के लिए करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन कॉमन फंक्शन ऑफ द मोबाइल इज़ कैमरा। ओहो, तो ये इसका यूज़ तो आप लोग डेली करते हैं, करते हैं ना। स्मार्टफोन ऑफ टुडे कम विद डुअल कैमरा unlike computer and laptops that often have one camera and the web camera that is front
and back camera that let you capture pictures, selfie and record videos. तो ये जो कैमरा है स्मार्टफोन में होता है, अब तो डुअल कैमरा आने लगा है, तो हम इससे सेल्फी भी लेते हैं, बैक कैमरा से भी पिक्चर क्लिक करते हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। पर क्या कंप्यूटर में ऐसे फैसिलिटी हैं? अभी नहीं है। लैपटॉप के पास एक ही कैमरा होता है या फिर हम कंप्यूटर में वेब कैमरा यूज़ करते हैं, है कि नहीं? ओके स्टूडेंट, नाउ द टुडे क्लास इज़ ओवर and chapter is also completed. Students, here is one quote for you. A little progress each day adds up to big result. Okay. Thank you students. Have a good day. I am Swati Sinha, your computer teacher, and be ready for your assignments also.